Jai Hind, my dear gentlemen cadets. Welcome to Target Defense Academy. This video is most important for all the NDA aspirants because आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। मेरे साथ हैं गिरिराज यादव, जिन्होंने फाइनली 34 SSB इलाहाबाद से रिकमेंडेशन ले लिया है। ही गॉट रिकमेंडेशन फ्रॉम 34 SSB इलाहाबाद। कॉन्ग्रेचुलेशंस गिरिराज, थैंक यू सर। और ये बहुत ही स्पेशल वीडियो इसलिए होने वाला है क्योंकि ये बच्चा बहुत ही क्लोज है मेरे, ठीक है। 1.5 साल से लगातार बच्चे के टच में रहना, कैंपस के अंदर बच्चा रहा, ठीक है, और किस तरीके से बच्चे ने प्रिपरेशन की और फाइनली ही गॉट सिलेक्शन। ओके, तो इसका जो बच्चे का एक्सपीरियंस रहा है ये आपके बहुत काम आने वाला है, और किस तरीके से आप गिरिराज का एक्सपीरियंस यूज करके आप अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर और अपना जो सिलेक्शन है, जो एनडीए में जाने का आपका सपना है, उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट वेलकम गिरिराज। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनल बैकग्राउंड and what's your basic education, from where you have completed your 10th and 12th, and where do you come from? So my name is Giriraj Singh and I come from Kanpur, Uttar Pradesh. My family consists of 3 people: my father, my mother and me. So talking about my father, he is an Amin in Revenue Department of Uttar Pradesh government, and my mother name is Mrs. Suman Devi. She is a housewife. Talking about myself, I have completed my class 10th and 12th from the same school near to my house in Mawar, Kanpur. ओके, टारगेट डिफेंस एकेडमी में आपका एडमिशन कब हुआ था? आपने कब एडमिशन लिया था? So I have taken admissions at the time when I have completed my class 12th, approximately at the time of 5th of May in 2023. आफ्टर 12th आपने किया था, और आई थिंक May 23, 2023, ओके, May 2023 में गिरिराज का एडमिशन हुआ था, और बच्चे ने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था वो था सितंबर 2023 का, एंड ही क्वालिफाइड दैट एग्जाम। और पहले अटेम्प्ट में जब बच्चे ने रिटन क्वालिफाई किया था, और तो आपका बेटा सेंटर कहाँ पड़ा था पहला? एसएसबी का? मेरा एसएसबी सेंटर बैंगलोर। एसएसबी सेंटर बैंगलोर, तो वहाँ से आप स्क्रीन्ड आउट हुए थे? यस, फर्स्ट टाइम स्क्रीन्ड आउट फ्रॉम एसएसबी बैंगलोर, और सेकेंड टाइम कुछ मार्क्स से बच्चे का रह गया था। तो थोड़ा आप बेटा आप अपनी जर्नी बताइए, एक, क्योंकि ये तो सारी चीज़ें मुझे पता हैं, ये आपकी जो जर्नी रही है, जो आपके एग्जाम्स, जो आपने 3 SSB दिए हैं, एंड थर्ड SSB यू गॉट रिकमेंडेशन फ्रॉम 34 SSB इलाहाबाद। तो ये बच्चों को थोड़ा बताएं कि कैसा रहा आपका journey. So talking about myself, I have taken guidance from Target Defense Academy, Lucknow, and in which they have shaped myself very much, and they had given me ample of opportunities to groom myself. The teachers and the staff member have helped me a lot in creating this thing, which has resulted in the recommendation of myself. So talking about my journey from where I have started. The first thing, I have come here, I done my basic education from my school only. That at that particular time my basics were strong, so I have gone through the way the teachers has been told us, and I have it has resulted in the qualification of my written examination. Then after, I have think that I will easily qualify the SSB portion, but it was not the case. I have taken many coachings related to SSB and overall speaking of English, but it was not sufficient for myself. Later on, I was not able to qualify the written examination, and it was lacking behind of 2 or 3 marks, so I was not able to qualify it. But later on, I have given my 100%, then I gave the written portion in my third attempt. But after that, I have also given the JEE simultaneously, and I got 87 percentile in it. So the education was parallelly going through, but I don't able to qualify the SSB portion. When I qualified the written second time, my center was at Jalandhar, and
unfortunately I got screened out, but after that I have given a huge comeback, and I went to the SSB 34 SSB and I have cleared it. ओके, तो जब आप डे 1 में व्हेन यू हैव टेकन एडमिशन इन टारगेट डिफेंस एकेडमी, Yes. तब से लेके और आज तक आपने क्या चेंजेस किए और कहाँ से आपको बेनिफिट मिला यहाँ पे, लाइक टीचर्स एंड एसएसबी गाइडेंस फ्रॉम द टारगेट डिफेंस एकेडमी स्पेशली, तो कहाँ से आपको इम्प्रूवमेंट मिला है, किन किन चीज़ों को आप ये रिकमेंड करते हैं कि ये चीज़ें बच्चे भी करें तो उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा? Yes, sir. So first thing that the written talking about for the written portion सर एक बहुत ही अच्छा माध्यम है बहुत सारे बच्चों को छाटने का. So in fact I was also not able to clear in the second attempt, but first attempt was very good. So talking about it, the written portion, sir, it was basically based upon your aptitude and mental thing. Like for mathematics you can go through the PYQs and some of the books which is related to class 10th and 12th, and you can, if you prepare for IIT JEE and you can easily qualify the written mathematics portion. Talking about the GAT portions, the teachers here has helped me a lot, especially Vikas sir in the geography portion, and English Shivangi ma'am has helped me a lot. So these are the things which has shaped myself me to qualify the written portion. And talking about the SSB, I have taken coaching means guidance from the Lieutenant Colonel Vijay sir, and he has been the role model for me, and he has given everything to help me a lot, and he has been the real motivation why I have to join NDA or means to become an army officer. And he basically pointed out each and every things, like you have to improve your story, you have to improve your means grammar, you have to improve your personalities, and these are the thing. And if I have able to clear my SSB in third attempt, or especially means I have able to get screen in my first attempt, in third attempt, the reason was Vijay sir only, and especially geography teacher Vikas sir. ओके, उसके अलावा बेटा देखिए बहुत सी मेहनत की गई है, जैसे कि आपकी एक एक लाइन पे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपकी एसएसबी की प्रिपरेशन कराई जाती है, ठीक है, अदर एकेडमीज कराती हैं, और यहाँ में क्या डिफरेंस आपको फील हो रहा है कि बाकी एकेडमीज जो एसएसबी की प्रिपरेशन कराती हैं लाइक 14 डेज टू 21 डेज, और यहाँ जो आपको रेगुलर गाइडेंस मिली है, इट मीन्स आई थिंक आपने 1.5 से 2 महीने कॉन्टीन्यूसली आप उस पर वर्कआउट हुआ है, तो उसमें क्या डिफरेंस आपको नज़र आया? सर जब हम कोचिंग करते हैं तो सर उस पर क्या होता है कि वो लोग एक रेडीमेड सोल्यूशन होता है उनके पास, कि जो रेडीमेड स्टोरी है उसी को देख के आपने बोल दिया, और जो लिखना है वही रेडीमेड सोल्यूशन है वो आपने छाप दिया. परंतु जब मैं अब यहाँ पे टारगेट डिफेंस एकेडमी में कोचिंग कर रहा था, तो ये था कि मैं अपनी स्टोरी लिखता था, उस पर वो लोग वर्क अपॉन करते थे कि यहाँ पे तुम्हारी ग्रामर मजबूत नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा ग्रामर लैग कर रहा है, यहाँ पर तुम्हारी वोकैब लैग कर रही है, यहाँ पे तुम्हारा सोल्यूशन लैग कर रहा है. एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्टोरी पे देखी जाती हैं, जो साइकोलॉजिस्ट देखता भी है, और उन्होंने हर एक चीज़ देखी, एंड दे हैव शेप्ड मी, मीन्स दे हैव बीन अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ देम, बोथ ऑफ देम. एंड सर मैं तो वैसे ही बता दूं कि मैं थोड़ा इंग्लिश में वीक हूं, तो मैं उतना कोलैबोरेट नहीं कर पा रहा था उनके साथ में, बट एडवांस ट्रेनिंग एंड द मेथड दे टीच हेल्प मी अ लॉट. या एग्जैक्टली. और लेफ्टिनेंट कर्नल विजय सर, और जिन्होंने बहुत बच्चे पे मेहनत की है, यस सर, और जितने भी बच्चे उनकी अंडर गाइडेंस में रहते हैं, टारगेट डिफेंस एकेडमी के अंडर गाइडेंस में रहते हैं, तो उन पर रेगुलर वर्कआउट करने का काम किया जाता है, ठीक है. ऐसा नहीं कि आपको 14 डेज या 15 डेज या आपको 21 डेज का कोर्स करके छोड़ दिया जाए. हमारा मेन मोटिव रहता है कि आपको थ्रू आउट दी सिलेक्शन, इट मीन्स जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है रिटन के पोर्शन के बाद से, टोटल आपको हम गाइडेंस में रखेंगे. जो यहाँ पे ऑफिसर्स हैं, जो यहाँ पे टीचर्स हैं, उनकी गाइडेंस में बच्चे रहेंगे, तो ये मानिए कि सिलेक्शन आपके होने के चांसेस
बहुत ज़्यादा हैं। और जिस तरीके से बिल्कुल एक बेसिक फैमिली के बैकग्राउंड से उठाकर बच्चों को, जैसे गिरिराज का जो बैकग्राउंड रहा है वो भी कोई बहुत डिफेंस का बैकग्राउंड नहीं रहा है ना। और जो चीज़ें यहाँ पे सिखाई गई हैं, आई थिंक 1 ईयर, 1 साल आप रहे हैं, 1 से 1.5 साल आप यहाँ रहे हैं, ठीक है। तो 1 से 1.5 साल में जो वर्कआउट किया गया है कॉन्टिन्यूसली, एक एक लाइन आपको लिखा के सिखाई गई कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें आपकी प्रॉब्लमेटिक हैं ना, तो वो चीज़ों पे बहुत वर्कआउट किया गया है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें अगर आप कर लेते हैं लाइफ में तो आपका सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। और ये जो पैटर्न है, जो एसएसबी का जो पैटर्न है, एसएसबी प्रिपरेशन का जो पैटर्न है, जो 14 डेज 21 डेज का, वो मैं स्लोली मैं उसको चेंज करने के प्लान में हूँ कि किस तरीके से एक्चुअल में बच्चों के बेनिफिट के लिए, क्योंकि गिरिराज का जो सिलेक्शन रहा है वो ओवरऑल गिरिराज की मेहनत प्लस कंसिस्टेंसी ऑफ दी टीचर्स एंड ऑफिसर्स की जो कंसिस्टेंसी रही है कॉन्टीन्यूसली। हमने ऐसा नहीं कि 14 डेज में बच्चे को पढ़ा दिया और भेज दिया, एसएसबी की प्रिपरेशन हो गई, कॉन्टीन्यूसली उस पर प्रैक्टिस करवाई गई है ना। तो और वो प्रैक्टिस, वो फिर प्रैक्टिस एसएसबी में देखी है ना, तब जाके बच्चों का सिलेक्शन होता है। और कहीं ना कहीं पर्सनल जो आपकी क्वालिटीज़ होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उनकी वजह से भी सिलेक्शंस होते हैं, क्योंकि अगर आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं करवा सकता है ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एसएसबी का एक्सपीरियंस कैसा रहा बच्चे, कि एसएसबी जो आपकी रही, फर्स्ट एसएसबी आपकी बेंगलोर में थी, सेकेंड एसएसबी जहाँ से आप आउट हुए वो जालंधर में रही, ठीक है, इट्स अ न्यू एसएसबी सेंटर। और थर्ड एसएसबी जहाँ से आप रिकमेंड हुए हैं वो आपकी एसएसबी रही 34 एसएसबी इलाहाबाद। तो क्या आप तीनों के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करें कि क्या किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा आपका पर्टिकुलरली इन एसएसबी सेंटर्स? So talking about my first SSB, which was at Bangalore, and I was very confident because I have taken coaching from a prestigious institution earlier, and I was very confident that I will crack it in my first attempt. But when I go through there and I meet the people, and I realized that something has been missed out when I was get screened out, because I have given my 100%, like I have narrated well and I have given contributed a lot to the GD portion as well. If I think that I get screened out, if I introspect myself, I think that my OIR portion was not very much good. So that may be the reason why I got screened out in my first attempt. Later on, when I went to the Jalandhar, I have been so overconfident, you can say, that I have also taken the I have completed OIR portion as well. Narration was good and group discussion was good. I was very confident I will make sure in my this attempt only. But unfortunately, there will be a less number of seat as compared to the other boards, and so I got screened out second attempt also. And in my third attempt, which was at 34 SSB Allahabad, I have given all of things which I have I have narrated well, and which results in the screening of that. Talking about the day second of the SSB, which was at SSB 34 SSB Allahabad. The psychology test was gone well. I have completed all my TAT study, and I have been doing 45 WAT World Association test, and approximately 50 to 51 SRT solutions. SRTs, okay. And I was able to complete it because I have done a lot of practice. Out of 60, 50 and 51, it's more than enough, right? And you have done very incredible job. Okay. Yes. Then after, if we talk about GTO portion. So in GTO, talking about the first task which was there is group task. So I have given, as you have also told that when I was doing the workshop at Target Defense Academy, that firstly you have to give your all points which are there, and later on give minimalistic points, like this may be the stats point and the bar graph or the previous year trends, just like I have done decent in it. And secondly, the GOIR test was there,
and I has been physically fit, so I don't have any problem in it completing. So it was like. What about the interview portion? So the interview portion was very good, and I think that particular time when I finished my interview, I think that I am able to I will get the plus sign which has been there. And sir, firstly जब मैं कमरे में गया वहाँ पे, तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक ऑफिसर बैठा हुआ है, तो उसने मुझसे पहले जाते ही पूछ लिया कि सो गिरिराज, तो तुम कानपुर देहात से आओ? मैंने यस सर। तो कानपुर देहात में कैसा क्या, मतलब कानपुर देहात और कानपुर नगर में क्या डिफरेंस है? तो मैंने उन्हें बताया कि सर कानपुर देहात थोड़ा एक एग्रीकल्चरल एरिया है, वहाँ पे एग्रीकल्चर को ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दी जाती है। वहाँ की कानपुर नगर के बारे में देखा जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वो थोड़ा डेवलप्ड सेक्टर चला जाता है। तो फिर उन्होंने मेरे फादर अमीन हैं, तो उन्होंने मेरे फादर का मतलब वो पूछा वर्क प्रोफाइल क्या है, तो मैंने उनको डिटेल में बता दिया कि मेरे पापा को लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करना होता है और यही सब चीज़ें होती हैं। फिर एक CIQ आया मेरे पास कि एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, ये सब बताने को बता दिया मैंने उनको। एक क्रॉस क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा कि तुम तो कह रहे हो कि तुम एक बार मतलब अपनी एजुकेशन को मतलब फाइनेंस नहीं कर पाए हो, और यहाँ पर मुझे दिखने को मिल रहा है कि तुम्हारे फादर की सैलरी 30K के अप्रॉक्सीमेटली है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि सर उस टाइम पे एक सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि मैं अपनी एजुकेशन को मतलब फाइनेंस नहीं कर पाया था, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो डिसेंट सैलरी थी और डिसेंट पढ़ाई मैं कर सकता था। बट फादर सोचते थे कि क्लास 10th एंड 12th में बच्चे को जितना अच्छे से मतलब एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाए जिससे कि वो आगे आने वाले फ्यूचर में उसको मतलब दिक्कत ना हो। तो ऐसे ही वहाँ पे मतलब मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि सर ऐसा नहीं है और ये चीज़ होती। तो डिसेंट तरीके से चला गया, ना कोई कॉन्ट्राडिक्ट क्वेश्चन पूछो उन्होंने, और बिल्कुल डिसेंटली चलता रहा सब चीज़। आखिरी में उन्होंने मैं वॉलीबॉल भी खेलता हूँ, तो उन्होंने वॉलीबॉल के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे, और आखिरी में मैंने भी उनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि सर मैं बहुत थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ SSB पोर्शन से, मतलब SSB को पढ़ते कि SSB कैसे निकालें। तो सर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है SSB के बारे में। तो मैंने कहा सर आप अगर एक चाहें तो एक किताब लिख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं सर्विस पे हूँ तो अभी नहीं लिख सकता हूँ, अगर रिटायरमेंट के बाद में टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर लिख दूँगा। तो ये सर इंसिडेंट रहा। ओके, तो ओवरऑल आपका जो बैच साइज़ था जब आप स्क्रीनिंग के लिए गए थे, ठीक है? यस। तो वहाँ पे क्या साइज़ रहा और कितने बच्चे फर्स्ट फेज लाइक स्क्रीन इन कितने हुए और कितने बच्चे फाइनल रिकमेंड हुए? Sir, the batch which report on the day first was approximately 136 students were there. 136 students Yes, over there. it Okay, was- and how many get a recommendation in like Screen. screened in? Screened in कितने बच्चे हो गए? So 36. Okay, 36 screened in हुए। Yes. तो आप समझ सकते हैं कि 136 out of 136 only 36 screened in हुए बच्चे, Yes. है ना? तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चों की छटनी कर दी जाती है ना? तो इस PPDT बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्क्रीन इन जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें आपका OIR टेस्ट और PPDT का टेस्ट होता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी इसमें ही स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आप आगे के टेस्ट में तो बैठ ही नहीं पाएंगे, ठीक है? तो बेटा मुझे कुछ आई जस्ट वांट टू आस्क योर पर्सनल ओपिनियन अबाउट योर motivational factor behind your success, okay, and from where you got the inspiration? So talking about the real motivation why I have to join army, so it seems to be a very white collar job and there is no corruption in it. The first reason is that. The second reason that inspired me most, that when I was attending a wedding in my area, local area, I came to know about army officer which is there, and I go there and I met him. I went there and meet him, and I feel that he is a personality and he is a person I want to I will become in the future. So यही मोटिवेशन रहा कि सर उनको देखा और सोचा कि अब ऐसे ही बनना। उनसे बात की तो अच्छा लगा कि
रेजिमेंटल पोस्टिंग होती है, यहाँ पे जाने का मौका मिलता है। तो सर उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। और सर उन्होंने एक चीज़ ये भी कही थी कि मतलब उन्होंने अपनी रेजिमेंट के बारे में तारीफ़ करते हुए बोला कि बहुत अच्छा बडी सिस्टम होता है, बहुत अच्छा प्लीजेंट इन्वायरमेंट होता है। तो यही सब चीज़ें उन्होंने बताई तो बहुत अच्छा लगा सुन के, और उनकी वजह से मोटिवेट हो गया। और ओके, वन थिंग विच आई वांट टू आस्क यू कि जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, और सिलेक्शन होने के बाद जब आप अपने लोकल एरिया में गए होंगे, तो आपको किस तरीके का चेंज देखने को मिला? मतलब इंटरेक्शन विद द पीपल जिनका पहले से आप जिनसे इंटरेक्ट करते होंगे, और उस टाइम के बाद से क्या आपको फील हुआ, किस तरीके की फीलिंग आपको हुई जैसे रिजल्ट निकला उसके बाद? सर रिज़ल्ट निकलने के बाद तो सब जो रिलेटिव्स थे वो सब काफ़ी खुश थे, और जो लोकल के भी मेंबर्स थे वो भी काफ़ी खुश थे कि कोई है हमारे इधर लोकल का जो निकाल के गया है, इतनी ऊंची पोस्ट में जाएगा। तो सर वो लोग काफ़ी खुश थे, और वो लोग भी मोटिवेट हो गए मेरे को देख के कि नहीं अब मुझे भी आर्मी के में जाना है। सर तो अच्छा लगता है कि सर मैं भी कुछ बच्चों का मतलब मोटिवेट कर सकता हूँ कि नहीं तुम भी कर सकते हो। मोटिवेशनल फैक्टर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए के लिए, या जो अपना करियर देख रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस सर्विसेज में एज एन ऑफिसर। तो बेटा एनडीए और एनडीए के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप डिफेंस में ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको केवल कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी एजुकेशन क्वालिटीज़ को हम बेटर करेंगे। यहाँ पे टारगेट डिफेंस एकेडमी, वी आर हेयर फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस और करना चाहता हूँ बेटा, कि टारगेट डिफेंस एकेडमी के कैंपस में आप रहे, ठीक है, तो उस कैंपस में और बाहर के कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला? सर एक तो सर मेजर डिफरेंस यही हो जाता है कि सर जहाँ जो हॉस्टल है और जो एकेडमिक्स का एरिया है, जो जहाँ पे पढ़ाई होती है, वो एक ही बिल्डिंग में है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अपना बच्चा आ रहा है और वहीं पे मतलब आके रह भी रहा है, वहाँ पे पढ़ाई भी हो रही है। बाकी कोचिंग में भी यही मतलब ये सिनेरियो नहीं रहता कि कहीं हॉस्टल दूर है और बच्चे को आने जाने में दिक्कत होती है, तो टाइम का मतलब वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। और बीच में जब वेस्टेज होता है और जब बच्चा मतलब हॉस्टल से कोचिंग में जाता है तो बीच में काफ़ी मतलब डिस्ट्रैक्शन भी आ जाते हैं, तो मतलब कभी कभी वहीं पे भी निकल जाता है। तो कभी कभी वहीं पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है ना, आप क्लास भी मिस कर देते हैं। बट इसमें यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट्स आपको मिलेंगे ही नहीं। Yes, आप वहाँ से निकलेंगे और सीधे क्लास में आपको जाना होगा, है ना। यस सर। ओके, तो और जो आपका एसएसबी की ट्रेनिंग का पीरियड रहा, ठीक है, जिसमें आपको विजय सर ने प्रॉपरली गाइड किया, यस सर, तो उसमें आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को शेयर करना चाहते हैं, जो आपने सीखी, जो आप बच्चों को भी बताना चाहते हैं जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं? यस सर। एनीथिंग? सर जब मैं 2 बार स्क्रीन आउट हो गया था तो मैंने तो पूरी मतलब जो होप थी मतलब बिल्कुल लूज़ कर दी थी कि नहीं अब तो कुछ होना भी नहीं है। तो जब मैं मतलब उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा नहीं देखो एसएसबी बहुत सिंपल है। उन्होंने शुरुआत में यही बात कह दी थी कि बेटा गिरिराज एसएसबी बहुत सिंपल है, तुम कर सकते हो। तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि 2 बार मैं स्क्रीन आउट हो गया, अब क्या ही मेरे को चांस मिलेगा। मैं तो यही सोच रहा था कि क्या ही चांस होगा। तो उन्होंने ही मतलब मोटिवेट किया। और सर मेरा बेसिक इंग्लिश भी मजबूत नहीं था उतना, तो उस टाइम पे उन्होंने मतलब कुछ सजेशंस दिए कि ये बुक पढ़ लो। कैसे एक ग्रामर की उन्होंने बुक सजेस्ट की थी, कुछ उन्होंने और बुक्स भी सजेस्ट की थी कि इनको पढ़ लो। कहते थे कि न्यूज़पेपर रीडिंग रोज़ किया करो, डायरी राइटिंग का सलूशन दिया, मतलब कि डायरी राइटिंग किया करो। तो उन्होंने 2-3 हॉबीज़ भी मेरे को बताई कि वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट कर दो, तुम्हारे पास हाइट है। तो यही सब उन्होंने चीज़ बताई कि गिरिराज देखो तुमको एक रूटीन सेट करना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग तुमको मतलब अपनी लाइफ मतलब व्यतीत करनी है, ये चीज़। और उन्होंने मतलब अब कह सकते हैं तो साइकोलॉजी जो पोर्शन है उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब मेरा कंप्लीट करा दिया था कि टैट की स्टोरीज़ को बारीकी से हर एक लाइन को देखना, एक वोकैब जो मेरी कैसे वोकैब में सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो वो वोकैब को भी सही कराते थे कि देखो गिरिराज ये शब्द यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये शब्द को काटो और दूसरा शब्द लिखो यहाँ पे, जो वो सजेस्ट करते थे कभी कभी। ओके, तो देखिए इसमें मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ सभी बच्चों से कि ये सारी चीज़ें जो एक ऑफिसर समझाते हैं, ठीक है,
ये सारी चीज़ें मैंने भी इनको कई बार समझाई थी ना। यस सर। मैं डेली बेसिस पे हर चीज़ बोलता हूँ कि बेटा ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। लेकिन जब एक ऑफिसर बोलता है तो इन पे असर पड़ता है, राइट। तो विजय सर इज़ करंटली सर्विंग ऑफिसर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है। तो जब उन्होंने गाइड किया प्रॉपरली, और बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं सर सभी बच्चों को, और काफ़ी अच्छा सिलेक्शन रेशियो रहा है हमारा, और जिसमें सर का काफ़ी अच्छा योगदान रहा। तो तब जाके बच्चों की ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। और जो बच्चे अभी प्रेजेंटली पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे एकेडमी में, अपनी एकेडमी में पढ़ाई कर रहे हो या बाहर किसी भी एकेडमी में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग, जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं एकेडमी में, है ना, और वही आपका सिलेक्शन कराती है। यस सर। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मैंने इन बच्चों को ना बताई हो, है ना। मैंने सभी चीज़ें बताई थी, डायरी राइटिंग की बताई थी, बट अगर इफ़ यू आर डूइंग द थिंग्स इन द राइट वे तो आप डेफिनेटली विल गेट सक्सीड, है ना। अगर आप उसको सही से फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप उसको नहीं करेंगे, इट मीन्स बोलना हमारा काम है, गाइडेंस देना हमारा काम है। आपको एक ऑफिसर समझा सकता है, हम लोग समझा सकते हैं, सारी टीम समझा सकती है, बट अल्टीमेटली फॉलो आपको करना है। और वो चीज़ें बच्चे ने फॉलो की, और फाइनली ही गॉट रिकमेंडेशन। और बहुत ही खुशी होती है जब बच्चे सिलेक्ट होते हैं हमारे, क्योंकि अल्टीमेट जो हमारा मोटिव है वो है बच्चों का सिलेक्शन देना, ठीक है। और जब बच्चे सिलेक्ट होते हैं, फाइनली ऑफिसर बनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो ओवरऑल एकेडमी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डे बाय डे इम्प्रूव होती रहती हैं, कुछ कमियां होती हैं, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं, कॉन्टीन्यूसली इस चीज़ पे वर्कआउट होता रहता है, राइट। बट व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट बी रियलिस्टिक। आप बिल्कुल अपनी जो रियल इमेज है उसको बनाए रखें और मेहनत करते रहें, है ना। तो ओवरऑल जो आपका रूटीन रहता था, ठीक है, जब आप एसएसबी के लिए यहाँ पे थे, यस सर। ठीक है, रिटन पोर्शन में जब आप थे तब तो आपकी प्रॉपर क्लासेस होती थी, बट एसएसबी के लिए थे तो आपका क्या रूटीन रहता था डेली बेसिस पे कैंपस के अंदर? तो सर पहले तो सुबह सुबह रनिंग 5 AM के करीब रनिंग पे चला जाना, मतलब इसके बाद मैं आया और अपना फ्रेश हो गया, मतलब 8 बजे तक फ्रेश हो गया। इसके बाद मैं थोड़ा बुक का जो रीडिंग किया, मतलब बुक रीडिंग नहीं, मतलब पहले न्यूज़पेपर रीडिंग, इसके बाद में बुक रीडिंग, तो मतलब 10 बजे तक अपना पूरा कंप्लीट, 10 साढ़े 10 बजे तक कंप्लीट हो जाता था। इसके बाद में कुछ जो स्टोरी होती थी, कैसे मेरे पास एक पिक्चर है तो उसकी मैं कम से कम 5-6 स्टोरी लिखता था। उसी मतलब गया, पहले एक स्टोरी लिख दी, चाय पी के बाहर से चाय पी के आया, फिर से एक स्टोरी उसी पे लिख दी, और थोड़ा दोस्तों से बात कर लिया, हॉस्टल के जो थे उनसे बात कर लिया, फिर से आया कमरे में एक स्टोरी लिख दी। क्योंकि स्टोरी लिखने में 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। थोड़ा बहुत बात करके आया तो एक और नया आइडिया आ जाता था कि नहीं ये भी हो सकता है, इस स्टोरी में ये भी हो सकता है। तो टैट का पोर्शन मतलब ऐसे ही, मतलब 1 बजे तक पूरा कंप्लीट हो गया था। 1 बजे तक सारे बच्चों को, जो 2-3 बच्चे जो मतलब जो वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, उनका एक ग्रुप बनाया हुआ था। वहाँ पे 1 बजे करीब सब बच्चों को गैदर करते थे, एक पीपीटी सेशन हो जाता था, कभी कभी 1 हो जाता था, कभी कभी 2 हो जाते थे। तो ये रूटीन में चलता रहता था। 2 बजे तक हो गया कंप्लीट मेरा। इसके बाद में जो मतलब हमारे सर हैं विकास सर, तो वो थोड़ा गाइडेंस देते थे कि ये चीज़ इम्प्रूव करो, क्योंकि अपनी स्टोरी मतलब मैंने तो स्टोरी लिख दी, अब उसको अगर कोई चेक नहीं कर रहा है तो वो तो फिर बेकार ही है। तो वो चेक करते थे, वो भी उस पर टाइम लगा देते थे, 1 घंटा आधा घंटा जितना उनको टाइम मिलता था। तो 4 बजे तक का ये सिनेरियो रहता था। 4 से बाद मतलब थोड़ा वॉलीबॉल भी खेलता हूँ ना, तो वॉलीबॉल भी खेल लेता था थोड़ा बहुत, और यही से 5-7 बज जाता था। तो शाम को सर की क्लास लेता था, विजय सर की 2-3 घंटे मतलब 2 घंटे की अप्रॉक्सीमेटली ऑनलाइन क्लास चलती उनकी, तो वो अटेंड करता था। और जो वो सोल्यूशन देते थे मतलब और मतलब बिल्कुल महीन करके, मतलब बिल्कुल डिटेल्ड आंसर, जो डिटेल होनी चाहिए। और कभी कभी तो मतलब 3D मॉडल्स से मतलब GTO का भी स्ट्रक्चर समझा दिया करते थे कि नहीं ये चीज़ लगाओ, ये चीज़ लगाओ। साइकोलॉजी तो साइड बाय साइड हो ही रही थी, और GTO का भी वो लोग कभी कभी समझाते थे, मतलब जिससे कि मेरे को दिक्कत नहीं आई GTO में भी और साइकोलॉजी में। शाम को वही सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना, और शाम को मतलब 11 से 11:30 तक के टाइम के बीच में मैं जो मेरा एक ग्रुप था स्टूडेंट्स का, तो वो मैं उनको गैदर करता था।
और शाम को एक और PPDT सेशन, क्योंकि मैं PPDT को ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहा था। राइट पीपी और PPDT इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। तो ओवरऑल गिरिराज, जो आने वाले बच्चे हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको टारगेट डिफेंस एकेडमी के लिए आप किस तरीके से रिकमेंड करना चाहते हैं कि वो आएँ यहाँ पे और अपनी प्रिपरेशन करें? तो क्या आप कहना चाहते हैं एकेडमी के बारे में? सी इफ़ यू आर कमिंग हेयर, फर्स्टली आप अगर पहले देखें तो अपना पहले बेसिक्स अगर इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि अपना जो मतलब आपको कैसे जब वो होता है कि आपका जो बोर्ड्स एग्ज़ाम हो गया उसके बाद में आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है करियर चूज़ करने का, परंतु जो बेसिक्स होती है वो कभी कभी इम्प्रूव नहीं, मतलब उतनी मजबूत नहीं होती। अगर आप NDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर एकेडमी आने से पहले अगर आप अपना बेसिक्स इम्प्रूव कर लें तो वो बहुत अच्छा होता है। इसके बाद में आया यहाँ पे मॉक ऑफ दे दिया करो और अपना एक फिक्स रूटीन रखो जिससे कि तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन ना आ पाए बीच में। और यहाँ पे टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, हिस्ट्री के, मैथ के, और मतलब मिथिलेश सर, विजय सर, विकास सर एंड आशुतोष सर ऑल्सो ऑफ फिजिक्स। सो काफ़ी इम्प्रूवमेंट। सर भी कभी कभी SSD की क्लास ले लेते हैं, तो पूरा ओवरऑल मतलब आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी और उसको अपने ऊपर ढालना, ये भी मतलब होना चाहिए कि सर तो बता के चले जाएंगे, अगर वही चीज़ फॉलो नहीं कर रहे हो वो लैग कर जाएगी आपकी। और जैसा कि सर ने भी बताया था कि डायरी राइटिंग किया करो, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, ये सब चीज़ें से ही इम्प्रूवमेंट आया है कि इंग्लिश थोड़ी बहुत सुधर गई है। और कभी कभी किताब भी पढ़ लेता हूँ तो इससे भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आई है। या एग्जैक्टली, बुक्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बुक्स पढ़ना आजकल बच्चों ने छोड़ दिया है, बिकॉज ऑनलाइन मोबाइल में ज़्यादा बच्चे पढ़ने लगे हैं। तो मैं तो बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप बुक के पीछे पड़ जाएं। जितना मोबाइल के कीड़े हैं उससे ज़्यादा बुक्स के अगर कीड़े बन जाएंगे तो आप लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो जो क्लासेस मिलती हैं उन क्लासेस के साथ साथ अपने बुक्स बहुत पढ़ना इंपॉर्टेंट है। नॉवेल्स वगैरह पढ़िए, न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं जो मैं रेगुलर बेसिस पे बच्चों को बताता रहता हूँ, बट करना ना करना ये अप टू देम, ठीक है। और जो बच्चे कर ले जाते हैं वही बच्चे रिकमेंड हो जाते हैं, वही बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो पहले अपने अंदर वो सारी चीज़ें आपको लानी होंगी। इट मीन्स डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, करने की एक वो होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए डिफेंस ज्वाइन करने का, है ना। अदरवाइज़ तो आप केवल टाइम पास करने अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे टाइम पास करने का कोई साधन नहीं है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन गिरिराज। थैंक यू सर। एंड जब भी एकेडमी में जाओगे तो वहाँ पे अपना पिछला एक चंदन यादव और है, यस सर, ठीक है, TS एंट्री के थ्रू, तो वो बच्चा भी आपको मिलेगा। और सारे ऑफिसर्स आपको ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं भी रहेंगे तो वो आपको मिलते रहेंगे कहीं ना कहीं, है ना। चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपना आगे की जर्नी स्टार्ट करिए। एंड टारगेट डिफेंस एकेडमी कंप्लीट टीम विशेस यू मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू, जय हिंद।